डेलीगेट नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, दिस इज अ लैटिन टर्म। मैं अभी आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट यूनिट 4 delegates non potest delegere. Basically, this is a Latin term which means the governing principle is that legislative powers must be exercised by the delegate himself and by none else. There is also the well-known maxim delegate non potest delegere, which means that the power to make laws cannot be delegated by the legislature to any other authority. कहने का मतलब ये है, द गवर्निंग प्रिंसिपल इज दैट लेजिस्लेटिव पावर मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द डेलीगेट हिमसेल्फ। जिसको जो पावर्स दिए गए हैं, डेलीगेट किए गए हैं, प्रत्यायोजन जिनका किया गया है, वो उन्हीं के द्वारा यूज किया जाना चाहिए, एंड बाय नन एल्स, किसी और के द्वारा नहीं। पावर्स टू मेक लॉज कैन नॉट बी डेलीगेट बाय द लेजिस्लेचर। जो विधायिका का जो कार्य है विधि बनाने का, power to make laws cannot be delegated by the legislature to any other authority। वो किसी और अथॉरिटी के साथ उसको डेलीगेट नहीं कर सकती। प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। डेलीगेट पावर्स जो है उसको आगे डेलीगेट नहीं कर सकते। किसी समर्थकारी कानून के द्वारा यह बात स्पष्टतः अथवा विवक्षित तौर पर प्राधिकृत की गई होनी चाहिए कि उस कानून का आगे प्रत्यायोजन हो सकता है, अन्यथा यह सिद्धांत कि प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता लागू हो जाएगा। इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए यह आवश्यक है, नेसेसरी है कि अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का प्रयत्न करने वाला प्राधिकारी स्वयं किसी अन्य प्राधिकारी का प्रत्यायोजित अधिकारी। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ सर एक्चुअली पीपीटी का सिर्फ फ्रंट पेज ही दिख रहा है। Now? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है। Definition: subdelegation. When a statute confirms some legislative powers of an executive authority and the latter further delegates those powers to another subordinate authors or agency, it is called subdelegation. यानी किसी को आपने पावर डेलीगेट किया है और फिर आप अपना उस पावर को आपके आगे और डेलीगेट कर रहे हैं, दैट कॉल्ड सब डेलीगेशन। ऑब्जेक्ट of this principle is the necessity of subdelegation is sought to be supported inter alia on the following grounds. First, power of delegation necessarily carries with it power of further delegation, and second is subdelegation is ancillary to delegate legislation, and any objection to the said process is likely to subvert the authority which the legislature delegates to the executive. Next, subdelegation of legislative power can be permitted either when such power is expressly conferred by the statute or may be inferred by necessary implications. Subdelegations of legislative power can be permitted. कब हो सकता है? Either when such power is expressly conferred by the statute, अगर विधायन के द्वारा ही, अगर किसी कानून के द्वारा अगर उसके अंदर ये पावर्स दे रखे हैं एक्सप्रेसली वहां पर, और मे बी इन्फर्ड बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन, और अगर नेसेसरी इम्प्लीकेशंस की वहां पर रिक्वायरमेंट है तो वहां पर भी ये सब डेलीगेशन हो सकता है। What do you mean by express power? Where a statute itself authorizes an administrative authority, where a statute itself authorizes an administrative authority to subdelegate its power, no difficulty arises, as it is validity since such subdelegation is within the terms of the statute itself. वहां statute में अगर ये provision है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गणपति सिंह जी वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर, बहुत पुराना मैटर है 1950s का। द पेरेंट एक्ट empowered the chief commissioner to make rules for the establishment of proper system of conservancy and sanitation at fairs. The rules made by the chief commissioner, however, empowered the designate to devise his own system and that was observed. The Supreme Court declared the rule ultra vires at the Parent Act conferred the power on the Chief Commissioner and not on the District Magistrate, and therefore the action of Chief Commissioner subdelegating the powers to the District Magistrate was indeed. Sometimes a statute permits subdelegation to authorities or officers not below a particular rank or in a particular manner only. गणपति सिंह जी वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर का केस है ये, 1955 AIR पेज 1
88, where a power is given to do a certain things in certain way, the thing must be done in that way or not at all. जिस तरह से उनको प्रत्यायोजन किया गया उसी तरह से उनका यूज किया जाना चाहिए. Implied power. Griffith rightly says that if the statute is so widely phrased that two or more tiers of sub-delegation are necessary to reduce it to a specialized rule on which action can be based, then it may be that the courts will imply the power to back the necessary sub-delegated legislation. Sub-delegated or legislative powers. The maxim delegated non-protest delegate, a delegate cannot further delegate. प्रत्यायोजन का आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता, applies to legislation also, and it is not possible for the delegate to subdelegate the power conferred on him unless the parent act authorized him to do so either expressly or by necessary implication. दो ही conditions हैं यहाँ पर आप subdelegate कर सकते हो, either expressly or by necessary implications, where the parent act authorized himself to do. If the parent act permits subdelegation to officers or authorities not below the particular rank, then the power can be delegated only to those officers or authorities. Subdelegate cannot act beyond the power conferred on him by the delegate. If some conditions are imposed by the delegate who must be implied with by the subdelegates before the exercise of power, those conditions must be fulfilled, otherwise exercise of power will be ultra vires. Subdelegation of judicial powers. क्या judicial powers का subdelegation हो सकता है? It is well established that a judicial or quasi-judicial powers conferred on a particular authority by a statute must be exercised by the authority and cannot be delegated to anyone unless such delegation is authorized by the statute either expressly or by necessary implications. Mahajan, in the leading case of Delhi Laws Act 1912, in relay down correct law on the point wherein the lordship state, no public functionary can himself perform all the duties. No public functionary can himself perform all the duties. He is privileged to perform unaided by agents and delegates. But from these circumstances, it does not follow that he can delegate the exercise of his judgments and discretion to others. The judges are not allowed to surrender their judgments to others. It is they and they alone who are trusted with the decision of a case. यहाँ पर ये भी बता रखा है लॉर्डशिप ने, नो पब्लिक फंक्शनरी कैन हिमसेल्फ परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज. कोई भी सक्षम नहीं है कि सभी तरह के कार्य वो खुद कर सके. ही इज प्रिविलेज्ड टू परफॉर्म अनएडेड बाय एजेंट्स एंड डेलीगेट्स. यहाँ पर वो एजेंट्स और डेलीगेट्स से उनकी सहायता है उनको. बट फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस इट डज नॉट फॉलो दैट ही कैन डेलीगेट द एक्सरसाइज ऑफ हिज जजमेंट एंड डिस्क्रिशन टू अदर्स. द जजेस आर नॉट अलाउड टू सरेंडर देयर जजमेंट्स टू अदर्स. जजमेंट्स की जहां तक हम बात करें तो यहाँ पर वो किसी और को अलाउ नहीं करेंगे. इट इज दे अलोन हु ट्रस्टेड विद द डिसीजन ऑफ द केस. वो खुद ही कोई जजेस कोई भी होंगे वो खुद ही अपना जो जजमेंट का क्राइटेरिया है वो खुद ही डिसाइड करेंगे. उनका डिस्क्रिप्शन है वो खुद ही करेंगे उसको. सब डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की अगर हम बात करें, एक्सक्लूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. The rule of law has always recognized the power of judiciary to review legislative and quasi-legislative acts. The validity of a delegated legislation can be challenged in a court of law. As early as 1877 in Impress versus Burha, the High Court of Calcutta High Court was reserved by the Privy Council. Neither before the High Court nor before the Privy Council it was even contended that the court had no power of judicial review and therefore cannot decide the validity of the legislation. Sir, sorry to interrupt you, but some students are waiting outside to join the class. Okay, no problem. कंक्लूजन पे हम लोग बाद में बात करेंगे. बिफोर हम लोग कुछ केस क्लोज है हमारे यहाँ पर, ट्रांसलेशन उसका कर रखा है मैंने हिंदी में. और एक चीज और है यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों की जो नोट्स हैं, यूनिवर्सिटी का जो हमारा वेब पोर्टल है MLSU.ac.in के ऊपर,
ई कंटेंट के नाम से वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स फर्स्ट ईयर के जो भी हैं जो बने हुए हैं वहां पर प्रोवाइड करे गए हैं, तो आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वहां पर उनको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हमने भी वहां पर हमारे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो वहां पर ई कंटेंट, डिजिटल ई कंटेंट के नाम से एक फोल्डर है उसमें अपलोड कर रखें, तो यू कैन इजीली एक्सेस, आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं उसको। Delegates non-protest delegate in the Delhi Laws Act, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 332 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सिद्धांत प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता कि कोई संवैधानिक हैसियत नहीं हो सकती, पर केवल लागू करने के लिए इसके पृष्ठ में राजनीतिक आज्ञा पत्र का बल हो सकता है, ताकि लोकतंत्र प्रणाली में लोक के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि विधि निर्माण के अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके, परंतु ऐसे कार्य न किए जाने पर न्यायालय संवैधानिक विधि के नियम के आधार पर इसका प्रवर्तन नहीं करवा सकता। इन द दिल्ली लॉज एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। एक बार जो पावर किसी को डेलीगेट कर दिया है वो उसको आगे सब डेलीगेट नहीं कर सकता। इसकी कोई संवैधानिक हैसियत नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी कोई इमेज नहीं है, पर केवल लागू करने के लिए इसके पृष्ठ में राजनीतिक आज्ञा पत्र का बल हो सकता है। परंतु किसी चीज को लागू करने के लिए आप सब डेलीगेशन कर सकते हैं वहां पर, ताकि लोकतंत्रीय प्रणाली में लोक के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका कार्य विधि निर्माण का, तो वो अपना विधि निर्माण के कार्य को सुचारू रूप से कर सके, परंतु ऐसे कार्य के न किए जाने पर न्यायालय संवैधानिक विधि के नियम के आधार पर इसका प्रवर्तन नहीं करवा सकता। डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं कर लूं, इस आधार पर इसका प्रवर्तन नहीं हो सकता जब तक कि आपको उसके लिए स्टैट्यूट में कोई एक्सप्रेसली प्रोविजन नहीं किया गया है वहां पर, तब तक आप किसी वर्क को डेलीगेट सब डेलीगेट नहीं कर सकते। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जो मैटर था 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 225 में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बेग ने यह निर्धारित किया था कि संशोधन की शक्ति जो है, अमेंडमेंट पावर्स जो है, कि प्रत्यायोजन का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। यदि संविधान को प्रमुख, इसमें उन्होंने कहा था यदि संविधान को प्रमुख और विधि की दृष्टि में सभी संवैधानिक विधिमान्य शक्ति और प्राधिकार का स्रोत अभिनिर्धारित किया जाए। क्या किया जाए? संविधान को प्रमुख माना जाए, मेन माना जाए। संविधान को प्रमुख और विधि की दृष्टि में सभी संवैधानिक विधिमान्य शक्ति और प्राधिकार का स्रोत अभिनिर्धारित किया जाए। प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता का सिद्धांत प्रत्यायोजित के विरुद्ध लागू होता है, प्रमुख के विरुद्ध नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर अपने आप किसी को पावर डेलीगेट कर रहा है और वहां पर वो सब डेलीगेट भी कर रहा है, क्योंकि संविधान को क्या माना गया है, यहाँ पर मेन माना गया है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट हमारा संविधान है, संविधान को प्रमुख माना गया और विधि की दृष्टि में संवैधानिक शक्तियां, क्योंकि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों को पावर्स जो देता है वो संविधान ऑफ इंडिया, तो वही विधिमान्य शक्ति और प्राधिकार का स्रोत है, वही प्रमुख है, उसके द्वारा प्रत्यायोजन किया जा सकता है, उसका सब प्रत्यायोजन किया जा सकता है। परंतु प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता का सिद्धांत प्रत्यायोजित के विरुद्ध लागू नहीं होता, यानी प्रमुख के विरुद्ध, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध ये सिद्धांत लागू नहीं होता कि प्रत्यायोजन का आगे और प्रत्यायोजन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो मेन है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी को डेलीगेट कर सकता है, सब डेलीगेट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सारे पावर्स हैं। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जो मैटर था उसमें जस्टिस बेग ने यही निर्धारित किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेन बेसिक धुरी वही है। इसमें और भी केस लो दे रखे हैं। एक अलिंगम वर्सेस मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिशरीज 1948 का, बिफोर इन कॉन्स्टिट्यूशन का ये केस है, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन का है।
जनरल रेगुलेशन 19 की रेगुलेशन 62 के द्वारा खेती करने के निर्देश की शक्ति रेगुलेशन प्रत्यायोजित किया गया था। खेती करने के निर्देश देने की शक्तियां थी, उसको प्रत्यायोजित किया गया था, उसका पावर। इस समिति ने तय किया कि एक क्षेत्र में 8 एकड़ चुकंदर की खेती की जाए। जिस खेत पर यह किया जाए रेगुलेशन आधार पर उसके अधिभोगी को यह सूचना देना आवश्यक था, परंतु समिति ने यह कार्य थे उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने एक स्थानीय उप समिति के साथ विचार विमर्श कर चुने हुए अधिभोगी को सूचना दे दी। खंड न्यायालय ने सूचना को अप्रभावित, क्योंकि समिति खेत निश्चित करने की अपनी शक्ति को आगे प्रत्यायोजित नहीं कर सकती थी। उसके अंदर ये प्रोविजन डिफेंस जनरल रेगुलेशन 1939 62 था, उसके अंदर समिति जो कमिटी थी उसने रेगुलेशंस को खाली एग्जीक्यूटिव सीट के ऊपर छोड़ रखा था एग्जीक्यूट करने के लिए। बट यहाँ पर ये मेंशन नहीं था कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपना जो भी जो उसको सूचना देनी थी, जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करानी थी, वो उसको आगे सबलेट कर सकता है नहीं। तो अगर यहाँ सब डे उसने किया है देने के बावजूद भी उसको वहां पर अप्रभावित ठहराया गया, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में ये प्रोविजन नहीं थे। लिंगम वर्सेस मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिशरीज 1948 का मैटर है। इसी तरह से आप टेक्स्ट बुक के अंदर अगर जाएंगे, टेक्स्ट बुक देखेंगे तो वहां पर टेक्स्ट बुक में आपको देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस ऑन डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्टेड डेलीगेट। उसके ऊपर बहुत सारे केस लो वहां पर मेंशन किए हुए। हमने यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव केस लो ही लिए थे। इंडी दिल्ली लॉज एक्ट का केस लिया था, केशवानंद भारती का लिया, बुमराह का केस लिया। तो सारे सभी केस लो हमने नहीं लिए थे। कुछ केस लो हमारे बुक्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, आपके पास बहुत सारा समय है। इस तरह से जब हम इस डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट की कंक्लूजन पे हम जाते हैं, सबसे पहले तो आप अगर इस लैटिन मैगजीन्स को समझें, डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट, डेलीगेट्स प्रत्यायोजन नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट, जिसका मतलब आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। प्रत्यायोजन आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो पर्टिकुलर आप टर्म्स को समझने की कोशिश करिए। अभी आपके और भी बहुत सारी लैटिन मैगजीन्स आएंगी, उसके अंदर इस तरह का, तो डेलीगेट्स यानी प्रत्यायोजन नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट का आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। हम इसके कंक्लूजन के ऊपर बात करें। सब डेलीगेशन एट सेवरल स्टेजेस रिमूव्ड फ्रॉम सोर्स dilutes accountability of the administrative authority and weaken the safeguards guaranteed by the act. सब डेलीगेशन है, मुझे डेल रही है, मैं कोई किसी और को आगे डेलीगेट कर रहा है, तो इस तरह से अगर सेवरल स्टेजेस पे अगर डेलीगेशन होगा, dilutes accountability of the administrative authority and weaken the safeguards guaranteed by the act. तो जो अधिनियम के द्वारा जो safeguards दिए गए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी अकाउंटेबिलिटी वो वहां कम होती हुई नजर आती है, नष्ट होती हुई नजर आती है। सारी जो जिसका उद्देश्य जो वो it's difficult for the people to know whether the officer within his prescribed sphere of authority. It also transfer powers from a higher to a hierarchically lower authority. It is therefore necessary to limit in some way the degree to which sub delegation may proceed. तो यहाँ पर एक हमें एक लिमिट होनी चाहिए यहाँ पर
पावर डेलीगेट करने की, क्योंकि ये जरूरी नेसेसरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही सारा कार्य कर सके। अगर डीएम है तो वो अपने पावर्स एडीएम को डेलीगेट कर रहा है, एडीएम एसडीएम को डेलीगेट कर रहा है, एसडीएम अपनी आगे की अथॉरिटी, परंतु उसकी एक लिमिट है, एक अथॉरिटी है कि उस रैंक तक के बिलो द रैंक ऑफ द ऑफिसर्स इस पर्टिकुलर मैटर को आगे डेलीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अगर धीरे धीरे अगर उसको डेलीगेट करते रहे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो डायल्यूट हो जाएगी। बिकॉज द सेफगार्ड गारंटेड बाय द एक्ट, जो एक्ट के द्वारा, जो अधिनियम के द्वारा जो सेफगार्ड प्रदान किए गए हैं वो कमजोर हो जाएंगे। तो यहां पर एक हिरार्की के अंदर एक लिमिट होनी चाहिए ट्रांसफर ऑफ पावर्स की। It is therefore necessary to limit in some way the degree to which subdelegation may proceed. There are serious difficulties about publication of subdelegate legislation. Such legislation not being an act of legislature, there is no requirement of publicity. Though casually made by minor officials, subdelegation create a rule and set up a standard of a conduct of all to whom the rule applies. No individual can ignore the rule with impunity, but at the same time, the general public must have access to the law and they should be given an opportunity to know the general public, बहुत important है, the general public must have access to the law and they should be given an opportunity to know the law. In case of such delegate and sub-delegated legislation, proper publication is lacking. तो यहां पर अगर हम देखें कि एक साधारण जो जनता है उनको विधि को जानना चाहिए, दे शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू नो द लॉ, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, उनको एक अवसर दिया जाना चाहिए कि वो विधि को जान सके। इन केस ऑफ सच डेलीगेटेड एंड सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अगर शक्तियों का यहां पर प्रत्यायोजन हो रहा है, डेलीगेट एंड सब डेलीगेट लेजिस्लेशन, तो वहां पर उनको ये उनकी जानकारी में होना चाहिए एंड प्रॉपर पब्लिकेशन इज लैकिंग। तो डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट का कंक्लूजन हम देखें तो इस सिद्धांत का अर्थ है प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। किसी समर्थकारी कानून के द्वारा यह बात स्पष्ट अथवा विवक्षित तौर पर प्राधिकृत की गई होनी चाहिए कि उस कानून का आगे प्रत्यायोजन हो सकता है, अन्यथा नहीं। यह सिद्धांत की प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता लागू हो जाएगा। इस सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का प्रयत्न करने वाला प्राधिकारी स्वयं किसी अन्य प्राधिकारी का प्रत्यायोजित अधिकारी। सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए अगर पब्लिकली टू इन्फोर्स दिस प्रिंसिपल, अगर हम इस प्रिंसिपल्स को डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट इसको अगर लागू करना चाहते तो शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले प्रत्यायोजित अधिकारी डीएम डीएम टीएम हेरा ये उस इंस्टीट्यूट के अंदर ये मेंशन होना चाहिए या स्पष्ट एक्सप्ली और इम्प्लीटली दोनों ही तरीके से ये पर पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो भी स्टे वहां पर ये मेंशन होना चाहिए, तभी आप इस प्रिंसिपल्स को जो डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट प्रिंसिपल है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट हमने इसका देखा ही था। द नेसेसिटी ऑफ सब डेलीगेशन सॉट टू बी सपोर्टेड इंटर alia on the following grounds. First, power of delegation necessarily carries with it powers of delegation. Second, sub-delegation is entry to delegated election and any objection that process is likely to subvert the authority which the legislature delegates. Delegation of legislator power can be permitted either when such is confirmed by subdelegation of legislative power can be permitted
either when such power is expressly conferred, यानी कि वहां पर उसका समावेश किया गया है, destitute then or be inferred by necessary implication, और अगर आवश्यकता है इस बात की तो तब डेलीगेशन किया। तो इस तरह से डेलीगेट द गवर्निंग must be delegate himself and by none else. Legislative power must be exercised किया गया है, जिसका प्रत्यायोजन किया गया है उसी के द्वारा होना चाहिए, and by else, but that the powers to make laws cannot be by the other authority. लेजिस्लेचर को किसी और अथॉरिटी को ये नहीं देना चाहिए। अगर दिया जा रहा है तो वहां पर पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ये मेंशन होना चाहिए एक्सप्रेसली और मे बी इन्फर्ड बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन, ये उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए। केस लॉज आप लोगों ने देखे ही थे यहाँ पर। नेक्स्ट एक प्रिंसिपल पहले भी पढ़ा था, इजुजम जेनेरिस। हम इजुजम जेनेरिस प्रिंसिपल्स को हम आज इसी के साथ देखते हैं। सजातीय अर्थान्वयन, सजातीय अर्थान्वयन का प्रिंसिपल जो है हमारा, ये सारे लैटिन टर्म्स हैं। इजुजम जेनेरिस ऑफ द the word should be given their natural meaning like all other words unless the context required otherwise. But when a general word for specific words of distinct category, the general word may be given a restricted meaning of the same category. हमने क्लास में पहले भी इसके बारे में इस टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। निर्वचन के इस नियम के अनुसार कानून में प्रयुक्त शब्दों का आशय उनके उत्सर्ग में लिया जाना चाहिए। अतः यदि कानून में विशिष्ट वस्तुओं की प्रगणना की गई हो तथा इनके अंत में सामान्य निष्कर्षात्मक शब्द या शब्दों का प्रयोग किया, तो उस सामान्य शब्द का या शब्दों का अर्थ विशिष्ट वस्तुओं के अर्थ में ही ग्रहण किया जाए। सपोज अगर यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स के नाम लिखे और आगे लगा दिया गया है, तो एक्सेट्रा का मतलब ETC, अगर एक्सेट्रा वहां पर मेंशन किया गया है तो उसका मतलब ये निकालना चाहिए कि वो वेजिटेबल्स के ही प्रयोग किया गया है। कोई परचेज ऑर्डर निकाला और वहां पर ये मेंशन किया गया है फर्नीचर, तो फर्नीचर के अंदर फर्नीचर ही होना चाहिए। उसके अंदर टेबल, चेयर, बेंच और अलमीरा, ये सब फर्नीचर के अंदर आए। उसके अंदर अगर आगे ETC एक्सेट्रा लिखा हो तो दैट मीन्स के वहां पर किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। वहां पे फर्नीचर का मतलब फर्नीचर ही होगा। तो निर्वचन के इस नियम के अनुसार कानून में प्रयुक्त शब्दों का आशय उनके उचित संदर्भ में लिया जाना चाहिए। अतः यदि किसी कानून में पहले विशिष्ट वस्तुओं की प्रगणना की गई हो तथा अंत में सामान्य निष्कर्षात्मक शब्द या शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो उस सामान्य शब्द या शब्दों का अर्थ उन विशिष्ट वस्तुओं के अर्थ में ही ग्रहण किया जाना चाहिए। इजुजम जेनेरिस का अर्थ है उसी प्रकार का, सेम थिंग्स। Drafters commonly use a series of terms followed by a general phrases intended as a catch-all. Courts construe that catch-all phrases as restricted to cases that share common characteristics with the specific terms to which it is linked. The basic principle of justice generis that if the legislature intended general words to be used in unrestricted sense, it would not have bothered to use particular words at all. साधारण शब्दों को दूसरे की समझना चाहिए जब तक कि संदर्भ दूसरा अर्थ लेने को बाध्य न करे। अब एक साधारण शब्द को
शब्दों के पृष्ठ में किया गया हो तो साधु भी उस सुस्पष्ट कोटि के सीमित अर्थ में निर्वत किया जाता है। साधारण शब्द पूर्ववर्ती विशिष्ट अभिव्यक्तियों से अपना अर्थ लेता है क्योंकि विधायिका ने स्पष्ट कोटि के विशिष्ट शब्दों द्वारा ऐसा करने की अपना आशय स्पष्ट कर दिया है। यह सिद्धांत कम साधारण शब्दों के पृष्ठ में प्रयोग किए गए साधारण शब्दों पर लागू होने तक सीमित है। परंतु अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे दृष्टांत भी मिलते हैं जिसमें मात्र एक शब्द की कोटि मानकर इस सिद्धांत द्वारा सीमित अर्थ निर्वचन किए गए हैं। यदि प्रयोग किए गए विशिष्ट शब्दों से एक संपूर्ण कोटि समाप्त हो जाती है तो इसका अर्थ यह कि विधायिका का आशय किसी और विस्तृत अथवा बड़ी कोटि से था जिसको खोजने के लिए न्यायालय प्रयत्न करेगा। कोर्ट हमेशा उस बात का प्रयत्न करेगा। सजातीय अर्थान्वयन का सिद्धांत सार्वत्रिक लागू करने का सिद्धांत नहीं है। यदि किसी विधान का संदर्भ इस सिद्धांत को लागू करने के विरुद्ध हो तो इसे लागू नहीं किया जा सकता। सजातीय अर्थान्वयन के सिद्धांत का आधार यह है कि यदि विधायिका का आशय साधारण शब्दों को असीमित अर्थ में प्रयोग करना होता तो विधायिका को विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आर.वी. वर्सेस इमुंडसन 1989 का केस है। It was stated by Lord Campbell, where there were general words following particular and specific words. There were general words following particular and specific words. The general words must be confined to things of the same kind as those specified. तो वहां पर जो वर्ड्स हैं confined to the things of the same kinds, एक जैसी सजाति यानी कि कहने का मतलब मिलती जुलती होनी चाहिए। By applying this rule, the presumed intention of the legislature is used to restrict the ambit of wide and general expression, and therefore the ejusdem generis rule is applied when कहां पर अप्लाई किया जाना चाहिए? First, the statute contain an enumeration of specific words. B, the general terms follow the enumerations. C, there is no indication of different legislative intent. Next, the subject of the enumeration constitute a class of category. And last, that class or category is not exhausted by the enumeration. Such that in an act dealing with the slaughter of animals for food for human consumption, the express cows, goats and other animals, whether the following animals are covered under the above expression, cats and dogs, poultry, wild animals, horse flesh, it does not extend to cats or dogs, as these are not commonly eaten, or to poultry, as these do not have the same physical characteristics as those listed, or to wild animals that are hunted for their meat. But in places where horse flesh is used for human food, it may be constituted to cover horses. यानी कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि सेम थिंग्स का मतलब सेम थिंग्स में ही निकाला जाना चाहिए। उस निकालना चाहिए। Ali Gulshan, 95, page number 81. The question whether the applicant was the Bombay 1948 to requisitions as for the public purpose, premises, house, consulate. The subsection provide that the state could may requisition the purpose of a state or purpose. The High Court held that the word any other purpose, अब any other purpose का अगर ejusdem generis के मीन उसमें निकाल read with the purpose of the state, the accommodation for a member of the foreign staff purpose of, and hence the state was entitled requisition. Allowing the appeal, the Supreme Court held with great respect constant to say that the ejusdem generis rule of the construction, which found favor in court below for reaching the result that the word any other public purpose are restricted to a public purpose, which is also a purpose of the state, has scarcely any application apart from fact
that the rule must be confined within narrow limits and general of comprehensive words should receive their full and natural meaning. They are clearly restrictive in their intendment. To say that there must be a distinct genius which must comprise more than one species before the rule can be applied. यानी बंबई बनाम गुलशन राज्य में बंबई भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1948 की धारा 4 भाषा सरकार राज्य के उद्देश्य अथवा किसी अन्य लोक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण कर सकती है कि वचन का प्रश्न है। जो एप्लीकेंट अपीलार्थी था का तर्क था इस प्रावधान के अंतर्गत विदेशी वाणिज्यिक दूतावास के सदस्य के लिए परिसर अधिग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति अन्य लोक उद्देश्य के लिए को अभियुक्त राज्य के उद्देश्य की सजाति के रूप में निर्वचित किया जाना चाहिए। विदेशी वाणिज्यिक दूतावास के सदस्य के लिए आवास का प्रबंध करना चूंकि संघ का उद्देश्य यूनियन लिस्ट का है। State that accommodation for a member of the foreign consulate staff is a purpose of the union and hence the state government was not entitled to requisition. विदेशी वाणिज्यिक दूतावास के सदस्य के लिए आवास प्रबंध करना चूंकि संघ का उद्देश्य राज्य का नहीं, इसलिए राज्य सरकार के पास अधिग्रहण का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने सजातीय अर्थान्वयन का नियम लागू करके भूल की है क्योंकि अभिव्यक्ति ने लोक उद्देश्य के लिए एनी अदर पब्लिक पर्पस केवल एक अभिव्यक्ति राज्य के उद्देश्य का अनुसरण करता है are restricted to public purpose which is also a purpose of the state, केवल जो कि एक सुस्पष्ट कोटि नहीं है, कोटि की अनुपस्थिति में इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त उपबंध की भाषा से विधायिका का आशय स्पष्ट है। यहाँ पर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर जो है वो है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द रूल मस्ट बी कन्फाइंड विद इन द नैरो लिमिट्स एंड जनरल ऑफ द कंप्रेहेंसिव वर्ड शुड रिसीव देयर फुल एंड नेचुरल मीनिंग अनलेस दे आर क्लियरली रेस्ट्रिक्टिव इन देयर इंटेंडमेंट। शब्दों को उनका प्राकृतिक अर्थ देने से स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति किसी अन्य लोक उद्देश्य के लिए अंतर्गत विदेशी वाणिज्यिक दूतावास के सदस्यों के लिए आवास की व्यवस्था करना भी सम्मिलित है। इट इज रिक्वेस्टेड दैट देयर मस्ट बी ए डिस्टिंक्ट जीनियस व्हिच मस्ट कॉम्प्रोमाइज मोर देन वन स्पीसीज बिफोर द रूल कैन बी अप्लाइड। यानी कि इस रूल को लागू करने के लिए सजातीय अर्थान्वयन का इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर जो है वो क्लियर होना चाहिए। वहां पर विधायिका का उद्देश्य किस पद में आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, ये न्यायालय की जिम्मेदारी। यहां पर इसी तरह का एक और मैटर था, द सुप्रीम कोर्ट इन उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस हरिशंकर। 1979 सुप्रीम कोर्ट page number 65, Supreme Court laid down the following 5 elements of this rule. First, the statute contains an enumerations of a specific word. उत्तर प्रदेश राज्य विधि से हरिशंकर का जो वाद था उसके अंदर 5 तत्व essential elements of this junior specify the statute contain an enumerations of specific word. कोटि बनाते हूं the subject of enumeration constitute or category not exhausted by the enumeration। प्रगणक द्वारा वह समाप्त की गई हूं। The general terms following the there is no indication, संकेत ना हो यहां पर। If the legislative powers If the legislative purpose of a statute is such that a statutory series should be reached existence generis, so be it,
the rule is helpful, but if not, the rule is more likely to defeat than to fulfill the purpose of the statute. The rule likely, maybe, other rules or statutory interpretation is a useful servant but a bad master. यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि किसी कानून का विधायी प्रयोजन ऐसा हो कि उस कानूनी श्रृंखला को सजातीय अर्थान के रूप में पढ़ा जाए तो ऐसा ही नियम सहायक है, परंतु यह नहीं तो यह नियम उस कानून के प्रयोजन को पूरा करने के बजाय उसे नष्ट करने का प्रयत्न करेगा। कानून के निर्वाचित नियमों की तरह यह नियम भी उपयोगी परंतु खराब स्वामी। अगर आप सिस्टम जेनरिस का उसको इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर अगर आप क्लियर नहीं पकड़ पा रहे हैं और अगर आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उन वर्ड्स का सजातीय अर्थान मानकर, तो ये रूल में अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इज ए यूजफुल सर्वेंट बट ए बेस्ट मास्टर। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन गलत से करेंगे और अगर आप बी इंटेंशन ऑफ पर्टिकुलर और उसके सीक्वेंसेस जो होंगे वो शायद ये हेल्पफुल के और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इन द ओल्ड इंग्लिश केस वर्सेस इयान वर्सेस क्रॉस का जो मैटर था, यहाँ पर इयान वर्सेस क्रॉस का 98 मैटर है ये। द वर्ड अदर डिवाइसेस had to be interpreted in section 48 subclause 9 of the Road Traffic Act 1930, which defines a traffic signs to include all signals, warning signs, post, direction post, signs of the device. Applying the rule of justem generis, the court held that a painted white line on a road could not be called a traffic sign because devices are things which a painted line on road is not. Similarly, in re Latham, this is the word or other person in the expressions trustee, guardian, committee or other person in section 8 subclause of the Finance Act 1894 was interpreted justem generis to mean a person in a similar position to a trustee etc. And as such a person who was beneficially interested could not be included with. इवन वर्सेस क्रॉस का जो मैटर है, रोड ट्रैफिक एक्ट 1930 की धारा 48 के सब क्लोज 9 में प्रयुक्त शब्दों अदर डिवाइसेस, यहाँ पर ये शब्द प्रयोग किया गया था अदर डिवाइसेस, उसके निर्वचन का प्रश्न था। इस धारा के अधीन शब्दों ट्रैफिक साइन के अंदर ऑल सिग्नल्स, वार्निंग साइन, पोस्ट डायरेक्शन, पोस्ट साइन और अदर डिवाइसेस से सम्मिलित है। सजातीय अर्थान्वयन के सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया कि सड़क पर पेंट के द्वारा बनाई गई सफेद रेखा ट्रैफिक साइन नहीं है, उसे ट्रैफिक साइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो डिवाइसेस हैं जो यहाँ पर यूज किया गया है, जिनका मतलब पर ये जो ब्लू लाइन की है, which defines a traffic signs to include all signals, warning post, direction post, signs और other devices. Devices का मतलब इन चीजों से वार्निंग वगैरह लगे हुए होते हैं, कोई पोल्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर डायरेक्शन मार्क किए हैं, बत्ती है, ये चीजें तो डिवाइसेस के अंदर आ जाएंगी। बट यहाँ पर रोड के जो वाइट में वर्ड लिखा कहा जा सकता है, क्योंकि ये डिवाइसेस तो हैं, जबकि सड़क पर की हुई रेखा तो नहीं कहा जा सकता। तो जो हैं उनका इंटरप्रिटेशन को मोर विजिबल रहना होगा। इसी तरह से हमने एक और यहाँ पर केस देखा था, उस पर भी इसी तरह की का जो मैटर है, रिलेशन का जो मैटर है, उसमें फाइनेंस एक्ट 1894 की जो सेक्शन है 8 जो इसका ट्रस्टी, वहां वर्ड और अदर पर्सन इन द एक्सप्रेशन ट्रस्टी, गार्जियन, अदर पर्सन was interpreted justem generis to person in a similar position to a trust, यहाँ किया गया है, and as such a person who was beneficially intended with,
सजातीय अर्थान्वयन का सिद्धांत लागू करते हुए अभिनिर्धारित कि ऑल अदर पर्संस का अर्थ ट्रस्ट या आदि से है और इस प्रकार का ऐसा व्यक्ति जो हितबद्ध से संबंध हो इसमें नहीं है। बेनिफिशियल इंटरेस्टेड पर्सन अदर देन ट्रस्टी वो यहाँ पर उसमें इंक्लूडेड नहीं माना जाएगा। एक्स्ट्रा का जो मैटर है यहाँ पर 19 डिसाइडेड द वर्ड और अदरवाइज हैज to interpreted in the definition of a workman as any person who has entered into a work under a contract with an employer, whether the contract be by way of manual labor, clerical works or otherwise. The court refused to apply the principle of ius generis, saying the preceding word manual labor and clerical work did not form distinct category to be called HMs. वर्कमैन की परिभाषा के अनुसार वर्कमैन ऐसा व्यक्ति जो किसी नियोजक के साथ किसी संविदा के अधीन किसी कार्य में शामिल होता है, चाहे वह विधान मैन्युअल लेबर, क्लेरिकल वर्क और अदरवाइज हो। न्यायालय ने सजातीय अर्थान्वयन के नियम को लागू करने से इनकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि ऑल अदरवाइज के पूर्ववर्ती शब्द मैन्युअल लेबर और क्लेरिकल वर्क एक विशिष्ट कोटि नहीं बनाते और इसलिए ऑल अदरवाइज शब्दों के निर्वहन के लिए सजातीय अर्थान्वयन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यहाँ पर कुछ और केस लो भी हैं, हम कल और कुछ केस लोज के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो इजुस्टेम जेनरिस का मतलब है सजातीय अर्थान्वयन। सजातीय अर्थान्वयन जैसा ये अर्थान्वयन का अगर हम एंटर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, निर्माण का जो वर्ड यूज किए जाते हैं विधायिका के द्वारा, कई बार ऐसा होता है विधायिका के द्वारा एक्सेट्रा वर्ड यूज कर लिया या इस तरह का कोई सिमिलर वर्ड यूज कर लिया या किसी वर्ड का अदर का मीनिंग अगर हमें निकालना है तो पार्टो इजुस्टेम जेनरिस होना चाहिए। इसका मतलब कि उसी प्रकार का सेम थिंग, यानी कि वहां पर जब इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो सेम थिंग में वर्ड निकलना चाहिए। अभिव्यक्ति इजुस्टेम जेनरिस का अर्थ है उस दूसरे शब्दों को दूसरे शब्दों की भांति उनके प्राकृतिक अर्थ में समझना चाहिए जब तक कि संदर्भ दूसरा अर्थ लेने को बाध्य न करे। जब जहां तक हो सके उसका जो नेचुरल मीनिंग है उस नेचुरल मीनिंग के अंदर ही उसका वर्ड निकाला जाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई मार्केट में जा रहा है फ्रूट्स वगैरह परचेज करने के लिए और वहां पर मेंशन किया कि आप जाइए केले, एप्पल और मैंगो इस तरह के और भी आइटम लेके आइएगा, तो यहाँ पर जो व्यक्ति जा रहा है उससे यही उम्मीद की जाएगी कि वो यानी कि फ्रूट्स ही लेकर आए। उससे ये उम्मीद नहीं की जाएगी वहां पर कहा कि आपको स्टेशनरी का कोई आइटम लेके आना था या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आना था, क्योंकि इसी तरह के आइटम्स लेके आइएगा तो उसके अंदर अगर हम इजुस्टेम जेनरिस सजातीय अर्थान्वयन कंस्ट्रक्शन अगर हम तो वहां थिंग्स उसी प्रकार की अगर वो वहां पर और अलग फ्रूट्स जो उससे नहीं बताया वो लेके आता है तो वो उसी में किया जाएगा कि सेम थिंग। बट अगर वहां से वो अगर कोई बुक्स लेके आए या पेन कोई स्टेशनरी आर्टिकल्स लेके आए तो दे आर नॉट कॉल्ड इजुस्टेम जेनरिस। अर्थान्वयन उस तरह से नहीं जाएगा कि आपको ये कहा गया था और ये यानी कहना मतलब जो चीजें परचेज वो सेम थिंग्स होने चाहिए। जब भी किसी इंटरप्रेट किया पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर अगर हम देखें तो वहां पर वैसा ही होना चाहिए जैसा कि ड्राफ्टमैन जो भी हैं उनका जो इंटेंशन होगा। जैसे हम इसकी डेफिनेशन में फर्स्ट में हमने बात की थी ऑफ द सेम काइंड, यानी मिलती जुलती वस्तुएं होनी चाहिए, सेम काइंड्स। नॉर्मली जनरल वर्ड शुड बी गिव देयर नेचुरल मीनिंग like all other words unless the context required otherwise। जब तक कि ये नहीं कहा उनके कंटेक्स्ट में अदरवाइज रिक्वायर नहीं हो तब तक उनका मतलब जो है
नेचुरल मीनिंग ही होना चाहिए. But when a general words follow specific words of distinct category, the general words may be given a restricted meaning of the same category. तो पर्टिकुलर उस कैटेगरी के अंदर ही उसका मतलब निकाला जाना चाहिए सजातीय अर्थान्वयन का. कल की क्लास में हम लोग और इसी के ऊपर कुछ केस उनके ऊपर डिस्कस करेंगे. लोग भी टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर से इनके जो इम्पोर्टेंट केस लो हैं, लीलावती वर्सेस बम्बई राज्य का हमदर्द दवाखाना का जो मैटर है, इवांस क्रॉस हमने देखा ही, बम्बई स्टेट वर्सेस गुलशन अली का हमने देखा है, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस हरिशंकर ने केस देखा है. सिमिलर जो केस लॉज हैं वो आप लोग देखा. और आप लोगों को और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नोट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर डिजिटल ई कंटेंट नाम से वहां पर अपलोड किए जा चुके हैं. आपका जितने भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके नोट वगैरह हम लोगों ने वहां पर प्रोवाइड करा रखे हैं. तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते. पीपीटीज हैं वहां पर, वर्ड्स की फाइल वगैरह हैं, ऑडियो वीडियो दोनों तरह के वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे. एज आई थिंक आपके पास बुक्स भी होंगी, आपने ली हो. अगर नहीं लिए तो वहां पर डिजिटल ई कंटेंट्स में डाउनलोड में या फिर आपका जो भी डिवाइस है उसके अंदर, और फिर उसको आप पढ़िए. और किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी, एनीवन हैज एनी डाउट तो पूछ सकते. सर हर प्रिंसिपल के कल साथ प्रिंसिपल आना जरूरी होगा? रिपीट करिए आपका क्वेश्चन. सर विद एवरी प्रिंसिपल केसेस डालना जरूरी होगा आंसर में? एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे या एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं, एक्स्ट्रा इंप्रेशन है. लाइक आप किसी चीज का इंटेंट तो कर लेते हैं, आप वगैरह समझा देंगे, बट उसको अगर वहां पर अगर क्वेश्चन ही डिसाइडेड केस और लीडिंग केसेस, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो तो आपको थ्रू केस लो स्टडी के थ्रू ही आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. तो जरूरी नहीं कि बहुत सारे वहां पर जो इम्पोर्टेंट केस लो हैं आपके वो आप मेंशन कर सकते हैं कुछ केस लो. और इफ अगर आपको उसका टाइटल याद नहीं रहता है, अगर आप उसका टाइटल याद नहीं रहता तो ये जरूरी नहीं कि आप वहां पर पूरा टाइटल और उसकी साइटेशन के साथ ही उस चीज को मेंशन करिए. आप लिखिए वहां पर एक वाद के अंदर इस तरह से लिखा गया था, या फिर जैसा अगर याद रह जाता है तो बहुत अच्छा. अगर आपको कुछ डाउट है तो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी डाउट है, अगर साइटेशन से रिगार्डिंग है या फिर आपके टाइटल के रिगार्डिंग है, तो आप उसको छोड़ दीजिए. आप डायरेक्ट उस केस को वहां पर प्रेजेंट कर लिए. आपका जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा उस चीज को. बट अगर आप गलत तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं तो वहां पर आपका हो सकता है एक नेगेटिव इंप्रेशन. तो जितना हो सके उतना एक एक दो केसेस तो आपको वहां पर मेंशन करने ही चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से ही अगर क्वेश्चन पेपर अगर ड्राफ्ट किया गया है विद हेल्प ऑफ द लीडिंग केसेस, आप उसको इलैबोरेट कीजिए या डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको उसी तरह से वहां पर उसको मेंशन करना होगा. तो आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है. सो
हम लोग कल की इसमें कंटिन्यू करेंगे हमारे जो भी आगे का जो सिलेबस है